हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम स्टार्ट करते सब टॉपिक नंबर 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम्स ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स दैट इज एमओ डायग्राम्स फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सब टॉपिक सेकंड में हमने डिटेल्स में डिस्कस किए थे एलसीओ रूल्स। ये आपके सामने कुछ एलसीओ रूल्स आए, हमने उनको अच्छे से डिटेल में किया था। हमें सिर्फ यहाँ पर एक ही रूल अच्छे से पढ़ना है और आगे चलना है जो हमें यूजफुल है, दैट इज formation of MOs, that is BMO and ABMO. So it is important here when two AOs take part in combination that results in two MOs, one is BMO other is ABMO. हमने अच्छे से डिस्कस किया था, ये रूल याद रखो। और रूल नंबर 6 that is number of molecular orbitals formed are always equal to the number of atomic orbitals taking part in the bond formation. This is the simplest MO diagram, that is molecular orbital energy level diagram. So it is obtained from LCAO principle. Important, this is an energy level diagram, so never forget to show the energy level, that is this arrow. Always energy level you have to show it. Okay. It contains two important parts. At the extremely left hand side and extremely right hand side you are going to show two atoms, as it is the diagram of diatomic molecule. It contains two atoms, so one atom is shown in extremely left hand side, one atom is shown in extremely right hand side, and at the center we are going to represent a molecule, and below the atom we are going to represent their AOs, that is their atomic orbitals here. Atomic orbital from atom number 1, atomic orbital from atom number 2, they take part in the bonding, they combine together. When they combine together, so according to the LCO principle, two AOs combine to form two MOs, one is BMO other is ABMO. So like this we will get one BMO and other is ABMO. So ABMO is shown above the AO's level because it is unstable having higher energy, and here BMO is shown because it is more stable having less energy. So two AOs combine to form two MOs. It may be a sigma, it may be a pi, that depends upon the combining combination. Okay, now this is a typical example. Now specific example of the molecular orbital energy level diagram of 1s level. Now what is a 1s? 1s subshell contains how many orbital? Only one. हमने डिटेल में इसको कहां पर देखा था? क्वांटम नंबर. So one orbital. So this is the 1s level of one atom, 1s level of another atom. So 1s level 1 plus 1, how many atomic orbitals are taking part in the combination? 2. So 1 plus 1 they give two MOs, one is a BMO other is ABMO. But what symbol, हमने symbol भी डिटेल में देखा था, तो symbol क्या आ रहा है? 1s combination gives sigma bond, that's why we'll get the two sigma MOs, sigma 1s sigma star 1s. ये स्टार मतलब क्या आ रहा है? दिस इज एंटी बॉन्डिंग, एंड यहाँ पर विदाउट स्टार मतलब बॉन्डिंग. सो दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्टार. तो सिंपलेस्ट डायग्राम ऑफ 1s लेवल. 1s लेवल कंटेन्स टू एओस एंड टू एमओस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा. नेक्स्ट 2s लेवल. अब 2s और 1s में क्या डिफरेंस? सिर्फ एनर्जी डिफरेंस है, पैटर्न सेम होगा. Again 2s subshell contains only one orbital, that's why one orbital from 2s level, one orbital from another 2s level, they combine to form two MOs, one is a BMO other is ABMO. लेकिन combination देखो कौन सा? sigma या pi bond combination. SS combination gives sigma bond, that's why the MO formed are sigma MO, sigma 2s and sigma star 2s. अब 2s क्यों आ रहा है? because 2s combination है. यहाँ पर 1s क्यों आ रहा था? 1s combination, sigma 1s sigma star 1s. यहाँ पर 2s क्यों आ रहा है? बिकॉज 2s कॉम्बिनेशन. सिंपलेस्ट डायग्राम. सो जब 2s लेवल आएगा तो उसमें कितने एमओस फॉर्म हो रहे हैं? सिर्फ 2 एमओस. एक फॉर्म हो रहा है आपका एबीएमओ और दूसरा फॉर्म हो रहा है बीएमओ. याद रखो बीएमओ नीचे दिखाना होता है एवरेज एनर्जी लेवल के, और एबीएमओ ऊपर दिखाते हैं. सिंपलेस्ट ये कौन सा एनर्जी लेवल हो गया? 2s एनर्जी लेवल. हम
आगे चलते, अब आएगा 2p लेवल। जब 2p सबशेल आता है तो व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ 2p सबशेल? 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल सी। अगर आपको याद होगा तो कौन से ऑर्बिटल होते हैं? यस, यहाँ पर देखो 2px, 2py and 2pz. So 2p level contains, yes, 3 orbitals. So here atom are shown 2p energy level from one atom, that is atom number 1, and 2p energy level from atom number 2. If both the atoms are same, they are shown at the same energy level. So देखो क्या होगा, according to the LCO principle rule, when 2p energy level मतलब 3 orbital, 1 2 3, and from this 1 2 3 total 6. If 6 AOs combined together will get 6 MOs. And what is the dividation? क्या होता है? LCO principle rule आपको यहाँ पर बताता है 3 AOs combined together to get the 1 BMO, 1 ABMO and 1 NBMO. But here 2 AOs combined to form even combination 2 MOs. So 6 AOs combined to form 6 MOs. उसको divide कैसे किया जाएगा? 3 BMO and 3 ABMO. अगर combination bonding combination है तो you will get all the बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। कोई नॉन बॉन्डिंग क्यों फॉर्म नहीं हो रहा है? बिकॉज ऑल आर बॉन्डिंग कॉम्बिनेशन। हम बाद में देखते हैं, मैं डायग्राम का पैटर्न दिखा रहा हूं। सो इट इज अ पैटर्न ऑफ 2p लेवल, 2p एनर्जी लेवल 3 plus 3 will have the 6 MOs, and these 6 MOs are divided into two parts, 3 BMO, 3 ABMO. 3 BMO are shown below the average energy level, 3 ABMO are shown above the average energy level. अब वो क्या कैसे ऑर्बिटल फॉर्म होता है हम आगे देखते हैं। सिर्फ पैटर्न देखो, 2p में कितना आता है? 6 MOs। यस, अब ये चैप्टर में ये सब टॉपिक में हम क्या मेनली डिस्कस करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू डिस्कस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम्स ऑफ विच मॉलिक्यूल्स? होमोन्यूक्लियर, दैट इज हमने हेडिंग ही दिया है डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। बट यहाँ पर अंडर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी चैप्टर मेनली हम कौन से पॉइंट डिस्कस करते हैं? दैट इज कौन से मॉलिक्यूल डिस्कस करते हैं? कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स एंड their stability on the basis of bond order and the stabilization energy, and we are going to compare magnetism. These are the objectives of study of molecular orbital theory chapter. In this chapter we are going to study covalent molecules by comparing their stability, by calculating bond order, स्टेबिलाईजेशन एनर्जी एंड मैग्नेटिज्म। मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको कोवेलेंट मॉलिक्यूल के लिए क्या क्या बताएगा? स्टेबिलिटी एंड मैग्नेटिज्म। अब वो कैसे कैलकुलेट करना है आगे वाले पार्ट में मैं दिखाता हूं, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमें सिर्फ दो ही पॉइंट्स पढ़ने, स्टेबिलिटी एंड मैग्नेटिज्म ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। यहाँ पर कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना, सिर्फ स्टेबिलिटी एंड मैग्नेटिज्म। सो वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस diatomic molecule in two parts, homonuclear diatomic molecule and heteronuclear diatomic molecule. ट्राइatomic molecule हम सबसे लास्ट में डिस्कस करने वाले, तो इसको यहाँ पर हम अब डिस्कस नहीं करते, अभी यहाँ पर फिलहाल छोड़ देते, उसको आगे चलते। होमोन्यूक्लियर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक? दोनों में कॉमन क्या है? डायटोमिक। सो बोथ द सेक्शन कंटेन्स टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इफ बोथ द एटम्स आर सेम, like hydrogen, beryllium, nitrogen, oxygen, then we call them as homonuclear diatomic molecule. If one is hydrogen, other is fluorine, or carbon and oxygen in carbon monoxide, so we call such molecules as heteronuclear molecule. Simple है, याद रखो। हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखो हमने कुछ कॉम्बिनेशंस देखे थे, बॉन्डिंग कॉम्बिनेशंस, नॉन बॉन्डिंग कॉम्बिनेशन, सिग्मा बॉन्ड कॉम्बिनेशन, पाई बॉन्ड कॉम्बिनेशन। तो याद रखो जब 1s कंबाइन होता है, मैंने आपको रिवीजन के लिए डाला, हमने लास्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं। तो देखो 1s, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर टेकिंग पार्ट इन द कॉम्बिनेशन 2? सो हियर which bond combination? Sigma bond combination. Symbol is sigma, MO is sigma, so we'll get 2 sigma MOs. Symbol is sigma 1s and sigma star 1s. अगर 2pz combination है यहाँ पर 2pz,
और 2p में फर्क है, याद रखो 2p अगर लिखा जाएगा तो 2p क्या होता है, 2p is a subshell and that contains 3 orbital, that is 2px 2py 2pz. लेकिन जब 2pz लिखा जाएगा तो 2pz is only a orbital. So here 2pz one orbital, 2pz another orbital, they combine to form pi bond. That's why here MO is also pi MOs. But how many pi MOs will get? 6 or 2? Only 2, because 1 plus 1, 2 AOs combine to form 2 MOs. One is a BMO, other is ABMO, but sigma या pi MOs form हो गए. कौन से कॉम्बिनेशन से आ रहा है? ZZ, that is इसलिए लिखा जाता है 2pz. सिंपल है, रिवाइज कर लेते हैं, आगे चलते हैं. अब सबसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम्स में आपको एनर्जी लेवल्स पता होनी चाहिए. और आपको एनर्जी लेवल्स कौन बताएगा? उसका एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. मैंने जब क्वांटम नंबर्स पढ़ाए थे तभी बोला था व्हाट इज एनर्जी लेवल. एनर्जी लेवल्स आर नथिंग बट, यस अगर याद आ रहा हो तो याद करो, यस एनर्जी लेवल्स आर नथिंग बट दी सबशेल्स. तो विच आर द सिंबल्स ऑफ द सबशेल्स. अगर कुछ याद आ रहा होगा तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके टर्म्स में लिखते हैं? इन टर्म्स ऑफ सबशेल ही लिखते हैं. तो सबशेल आपके पास कौन से होते हैं? यस, विच इज फर्स्ट 1s एनर्जी लेवल, फिर आता है आपका 2p एनर्जी लेवल, सॉरी 2s एनर्जी लेवल, फिर आता है आपका 2p एनर्जी लेवल. हमें तीन ही एनर्जी लेवल्स पढ़ने हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी चैप्टर में. सो याद रखो 1s 2s एंड 2p. सो फर्स्ट एटॉमिक नंबर किसका होता है? हाइड्रोजन. सो वन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s1. व्हाट इज अबाउट हीलियम? 2 इलेक्ट्रॉन, सो कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2. लेकिन जब 3 आएगा एटॉमिक नंबर लिथियम, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम इज 1s2 एंड 2s1. सबसे पहले कौन सा सबशेल फील्ड होगा? 1s. कितने इलेक्ट्रॉन? कैपेसिटी 2 है. वो फील्ड होने के बाद इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट सबशेल में जाएगा 2s, एक बचता है इसलिए 2s1. अब देखो दोनों में हाइड्रोजन और लिथियम में क्या डिफरेंस है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसलिए हो गया 1s1. So that contains how many energy levels? Number of energy levels present in hydrogen are 1, 2 और 3. तो यहां पर मैंने लिखा है 1. 1 का मतलब क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन नहीं, नंबर ऑफ सबशेल्स. So how many subshells is contain? Only 1. That's why answer is 1. Lithium atomic number is 3. That's why electronic configuration is 1s2 and 2s1. So it contains 1s energy level, 2s energy level, that is 1s subshell, 2s subshell, and that's why it contains how many energy level? 2 energy levels. अभी कहाँ पर काम में आने वाला है? एनर्जी लेवल डायग्राम्स में. तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम्स में क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एनर्जी लेवल्स. तो जब भी हाइड्रोजन का डायग्राम आएगा तो उसमें कितने एनर्जी लेवल होंगे? ओनली 1s का. और वो कौन सा होगा? जो हमने पीछे डिस्कस किया है, ये वाला. सिर्फ यही डायग्राम आएगा हाइड्रोजन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम, बिकॉज इट कंटेन्स ओनली 1s सबशेल. अब लिथियम आएगा तो लिथियम में दो डायग्राम्स आने वाले. कौन से? 1s का एनर्जी लेवल इंक्लूड होगा और 2s का. मैं आगे दिखाने वाला हूं. फॉर एग्जाम्पल अब चलो आते हैं, अगर हमने ऑक्सीजन लिया है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना? 8 है. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बिकम 1s2 2s2 2p4. सो इट कंटेन्स हाउ मेनी एनर्जी लेवल्स? Yes, 3. Why? Because it contains 3 different subshell: 1s subshell, 2s subshell, 2p subshell, and that's why it contains 3 energy levels. So किसका डायग्राम ऑलमोस्ट सिमिलर आने वाला है? ये 6 molecules, that is boron molecule, carbon molecule, nitrogen molecule, fluorine molecule, and the neon molecule diagram will contains 3 energy level. But what is about lithium and beryllium? They contains 2 energy level. But hydrogen, helium, 1 energy level. So they contain similar diagram. Now they contain similar diagram. So please remember, अगर आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम अगर ड्रॉ करना है तो विच इज इंपॉर्टेंट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गिवन एटम. अगर वो याद है तो डायग्राम ड्रॉ करना आएगा. अब मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके लिए यहाँ पर ड्रॉ किए.
एग्जाम्पल्स किसके, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम। तो तीन डिफरेंट डायग्राम से, तो यहाँ पर फर्स्ट डायग्राम जो इसमें अगर ऑब्जर्व करोगे तो हेलियम के लिए, अब हेलियम का एटॉमिक नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, हाउ मेनी एनर्जी लेवल इट कंटेन्स, ओनली 1। इसलिए देखो ये पूरे डायग्राम में एक ही एनर्जी लेवल आ रहा है, कौन सा एनर्जी लेवल है, 1s, बिकॉज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2। सेकेंड, लिथियम के लिए, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज 3, एज atomic number is 3, electronic configuration is 1s2 2s1, it contains 2 energy level। कौन से एनर्जी लेवल आएंगे, 1s और 2s का। तो देखो ये डायग्राम में 1s एनर्जी लेवल दिखाया है as well as second energy level, so which energy level is shown below, ये हाइयर ऑर्डर में दिखा है, तो सबसे लोअर एनर्जी किसका होता है, 1s का, इसलिए 1s बॉटम में आया है। फिर इसके ऊपर हमने कौन सा एनर्जी लेवल ड्रॉ किया, 2s का। तो दिस डायग्राम कंटेन्स 2 एनर्जी लेवल 1s and 2s in the lithium because lithium contains 2 subshells। थर्ड एग्जांपल कोई भी ले सकते हैं हम, ऑक्सीजन, ये 5 to 10 एटॉमिक नंबर से, देखो ये कॉन्फ़िगरेशन बताएगा 1s2 2s2 and 2p4। so what that indicates, 2p4 ये कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए है, ये कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन कंटेन्स 1s 2s 2p लेवल, that's why the diagram molecular orbital energy level diagram of oxygen contains 3 energy level। इसलिए ये डायग्राम में पहले आया 1s एनर्जी लेवल, वो 2s से बिल्कुल अलग है, फिर आ गया 2s एनर्जी लेवल, वो बिल्कुल 2p से अलग है, और ऊपर हमने कौन सा डायग्राम ड्रॉ किया, 2p एनर्जी लेवल, ये 2p एनर्जी लेवल, ये 2s एनर्जी लेवल एंड 1s, सिंपल है, 1 बाय 1। अगर लिथियम है तो ये दोनों ही ड्रॉ करने, अगर ऑक्सीजन है तो ये तीनों ड्रॉ करने, अगर हाइड्रोजन हीलियम है तो ओनली फर्स्ट एनर्जी लेवल करना। तो दिस इज द डायग्राम विथ 1 एनर्जी लेवल, डायग्राम विथ 2 एनर्जी लेवल, डायग्राम विथ 3 एनर्जी लेवल, सिंपल है। अब यहाँ पर देखो एक डिफरेंस आता है, जब यहाँ पर हमने पीछे 2 टाइप में डायटोमिक मॉलिक्यूल्स डिवाइड किए, दैट इज होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल एंड हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक, विच इज अ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। अगर मैं आपके लिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ड्रॉ करता हूं H-H एंड सेकेंड इज HCl, डैश का मतलब होता है कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पर हम कोवेलेंट मॉलिक्यूल डिस्कस करें। सो कौन सा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, ये मॉलिक्यूल को अगर सेंटर से कट किया तो विल गेट द 2 इक्वल पार्ट्स, that's why these homonuclear diatomic molecules are symmetrical and their diagram will also be symmetrical। but जब HCl को अगर आप कट करोगे तो क्या होगा, yes molecule will be unsymmetrical, as molecule is unsymmetrical, so the diagram of heteronuclear diatomic molecule will also be unsymmetrical। example आपके सामने HCl CONO, but H2O2 C2, as these molecules are symmetrical the diagram will be the symmetrical। देखो यहाँ पर symmetrical का मतलब क्या है, AOs are shown at same energy level because atoms are same so their orbitals are same। यहाँ से भी अगर देखोगे कोई भी साइड से अगर आप डायग्राम देखोगे तो symmetrical है, बट यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो सपोज हम CO मॉलिक्यूल लेते हैं, CO मॉलिक्यूल अगर हमने लिया तो उसमें अगर आएगा एक कार्बन और दूसरा आएगा ऑक्सीजन, विच इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, as oxygen is more electronegative its energy is less, that's why it is shown at the bottom part। देखो as compared to carbon which is more electropositive energy is more, that's why it is shown at some higher level, but oxygen is more electronegative more stable, that's why its atomic orbital shown at the lower level, so that is a difference। इसलिए but atomic orbitals of more electronegative atom they contribute more towards BMO formation, that's why BMO is shown more closer to the more electronegative atom orbitals, but more electropositive or electropositive atom contributes more toward the formation of
ABMO. That's why ABMO are shown more closer to this. That's why this diagram becomes unsymmetrical. आगे जब डायग्राम्स आएगी तब आपको समझ में आ जाएगा. मैंने आपके लिए एक टेबल बनाया. अब मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल लेके रखे. पहले हमने लिया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. अगर देखोगे हाइड्रोजन, O2, HCl, CO, all four are diatomic molecules. But first two, hydrogen and oxygen, they are symmetrical or unsymmetrical molecules? Symmetrical. उसको हम क्या कहते हैं? Homonuclear diatomic molecules. इसीलिए उनका डायग्राम्स क्या होना चाहिए? What is the type of diagram? Diagram will be symmetrical. But what will be the diagram of HCl molecule and CO molecule? As both are unsymmetrical molecule, the diagram will be unsymmetrical. आपको पहले पता चल जाना चाहिए. उसके बाद डायग्राम्स में कितने एनर्जी लेवल हो गए ये कॉम्बिनेशन डिसाइड. अगर हाइड्रोजन है, बोथ एटम्स आर सेम. हाइड्रोजन हाइड्रोजन बोथ आर 1s1 1s1. तो 1s यहाँ पर भी एक एनर्जी लेवल है, एक एनर्जी लेवल है. दे कंबाइन एक एनर्जी लेवल मतलब वी विल गेट ओनली वन एनर्जी लेवल हियर. बट O2 मॉलिक्यूल oxygen contains 1s2 2s2 2p4 subshell. 3 subshell means how many energy level it has? Yes, by mistake यहाँ पर देखो क्या हो गया 2. तो क्या चाहिए था यहाँ पर 3 एनर्जी लेवल्स. HCl मैं आगे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ. ये यहाँ पर छोटे सी इतना उसका डायग्राम अनसिमेट्रिकल होगा. बट CO जब आ रहा है तो CO में कार्बन या ऑक्सीजन में कितने कितने एनर्जी लेवल से? 1 एनर्जी लेवल, 2 एनर्जी लेवल, 3. दैट्स व्हाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेवल विल बी 3. थोड़ी सिमिलरिटी बिटवीन हाइड्रोजन एंड HCl. number of energy levels 1 energy level, but difference is symmetrical and unsymmetrical. Similarity between oxygen and CO molecule, दोनों में similarity क्या है? number of energy level 3 but diagram will be symmetrical and unsymmetrical. तो ये difference है. यहाँ पर हम first प्रेजेंटेशन खत्म कर रहे. नेक्स्ट सेशन में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेवल और अच्छे से कैसे ड्रॉ करना है वो डिस्कस करते हैं. तो ये आपका हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम 5 to 6 सब टॉपिक्स में देखने वाले हैं. तो विल स्टॉप हियर.